Namaste, Salam Alaikum, and good evening, everyone. Myself, Upasna, welcome you on Upasna's Live after a long time. Today, I'm here to discuss on a very important and necessary topic, COVID 19. So stay tuned till the last. Praying for all, for their everyone, for their better health, and praying for those who are struggling with the COVID, and very sorry for everyone, those who lost some of their dear ones. Deaths are increasing, too less of oxygen, hospital beds are full, sleepless and breathless days and nights, a terrible time we all are facing here in India. A very struggling stage, I guess, all over the world. So, today we will, a guest is invited to talk on these things that pre and post COVID, if you are having, so how you deal with it. Before that, I would like to say few things on this, what I have noticed, as I was waiting for this since long, that I have to say something on this topic. And I was just analyzing and making the points and notes what all is going on around us. As being spiritual, as being in spirituality, I can say that it's a nature's call to take a pause, to stop, to think, to redirect your focus, redirect your life, where exactly or where or why you are here on earth. I mean, maybe we have taken many things for granted. So, some points that I brought with me. So, as we knew that the new normal is not that normal for everyone. So the first wave has gone and it made a lot of difference in our life. The second wave is there with the terrible things and critical issues. And yet we heard about the third wave is going to come. So this is a very difficult stage of life we are going through. So from last 1 year, what I understood is everyone is facing a different kind of things. Like the person is not the same he or she was since last 1.5 year. There's a lot of changes in lifestyle as well. Like people are feeling suffocated, whatever I get to know from the people as well, I felt the same, like suffocated, frustrated many times, lonely, low feelings, and then hopeless and depressed. These all are signs that we all are having after being at home, isolated, or anything. Like you are staying at home is literally a different feeling. So where I experiences, like I can say we all are in a spaceship. I mean, I can say that we all are in a spaceship. Days and nights are going, and when you travel, अगर आपकी भाषा में बोले, बहुत सिंपल, आई थॉट टू स्पीक इन हिंदी दिस टाइम टू, कि अगर आपकी लैंग्वेज में बोले तो आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं और एक डेस्टिनेशन पे आप पहुंचने वाले हैं, बट उसके बीच में अगर आप उससे बाहर निकलोगे, आप बोलोगे कि मुझे सफोकेट हो रहा है, मुझे बाहर जाना है, तो क्या होगा? क्या होगा आपके साथ? सो आपको थोड़ी टाइम के लिए जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, उस समय को पेशेंटली निकालना होगा, सो दैट आगे चल के आपको नुकसान ना हो और ना ही आपसे जुड़े हुए लोगों को नुकसान हो. सो यू हैव टू केयर फॉर दैट. सो देयर आर सम पॉइंट्स जो मैंने अभी समझे हैं, जैसे कि सबसे पहले कि जब हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम घर पर ही हैं, तो हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन सब के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं. हमारे जो भी रिलेशंस हैं वो सब हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक या जो भी बोलो, इन पर निभाए जा रहे हैं. सो इसमें हो क्या रहा है कि मेंटल स्ट्रेस भी आ रहा है.
बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आ रहा है लोगों को। और खुद ही खुद में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एजम्पशन कर रहे हैं लोग। एजम्पशन किल्स, डोंट डू एजम्पशंस। एजम्पशंस बहुत ही गंदी चीज़ है। जैसे कि हमारे पतंजलि योग सूत्र में कहा जाता है कि जब आपका परसेप्शन क्लियर नहीं है तो आप एजम्पशन करते हैं। जस्ट लाइक अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी भी आपको सांप के जैसे दिखने लगती है। सो जब तक आपका परसेप्शन क्लियर नहीं है, आप कुछ भी एज्यूम मत करो। सो बाहर क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो कोविड का टाइम है, ये सबकी लाइफ को इम्पैक्ट किया है, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो बंदा 2-3 साल पहले जैसा था वैसा अब हो ज़रूरी नहीं, उसकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आए होंगे। सो यू जस्ट कैन जज एनी पर्सन एंड नॉट एजम्पशंस। तो माई सेकेंड पॉइंट वॉज जजमेंट, कि आप किसी को भी जज मत करो इस समय में। जैसे मेंटल स्ट्रेस आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, लोग देख रहे हैं कि दूसरा कोई तो भाई बड़ा खुश लगा पड़ा है, सबकी लाइफ में अच्छी चीज़ें चल रही है, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही, ऐसा कुछ नहीं है। सो प्लीज़ सबसे पहले आप एजम्पशन बंद करें। दूसरा, आप जजमेंट बंद करें, कि आप किसी को भी जज मत करो, आप सिर्फ अपनी लाइफ में फोकस करो। और सबसे ज़्यादा चीज़ ये आती है ना कि जब आप व्हाट्सअप ओपन करते हो, किसी का डीपी नहीं दिख रहा तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसको मैं नहीं चाहिए हूँ, मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन होने लगती हैं। आप अपने आप को किसी की लाइफ में इतना प्रायर मत बनाओ कि मतलब आप उसको इमेजिन करो, एज्यूम करो, और फिर प्रॉब्लम्स आप ही को ज़्यादा क्रिएट होंगी और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं सामने वाले को भी इम्पैक्ट करेगा। सो ये सिचुएशन में अगर आप समझदार हैं तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को समझें। मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने एनालाइज करी हैं और ये सब मैं समझी हूँ। जब लोग बोलते हैं कि हम मेंटली डिस्टर्ब हैं, मेंटली क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं आप? बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जब आप व्हाट्सअप ओपन करते हैं, बहुत सारी लाइक सुबह मॉर्निंग में उठे, मोबाइल ऑन किया और उसमें लग गए, रात को सोते वक्त आप मोबाइल पे हो, ये सारी चीज़ें आपके मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। सो प्लीज़ फर्स्ट पॉइंट इज एजम्पशन बंद करो। सेकेंड, जजमेंट मत करो, क्योंकि जब तक आपको परसेप्शन क्लियर नहीं है, आपको एजम्पशन के वजह से जो आपको मिलेगा, जजमेंट जो आप करोगे कि हाँ ये ऐसा है, वो ज़रूरी नहीं वैसा हो। बेस्ट एग्जाम्पल इज़ मोनालिसा का पेंटिंग। मोनालिसा का पेंटिंग आपने देखा होगा। उसमें कैसा है कि कुछ लोग बोलेंगे कि बड़ी खुश दिख रही है उस फोटो में, और कुछ लोग बोलेंगे कि इसको बड़ा दुख है। इसका मतलब ये नहीं होता कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो किसी के जजमेंट के ऊपर टिकी हो। वो जो देख रहा है वो उसी तरीके से समझता है उस चीज़ को। सो इट्स नॉट एट ऑल अबाउट द मोनालिसा का पेंटिंग, इट्स अबाउट द पीपल दोज हु आर थिंकिंग ऑन इट। सो उस चीज़ों को अपने ऊपर इम्पैक्ट मत होने दीजिए, और ना ही आप उस चीज़ों के बारे में सोचिए। आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में जो भी समय है आपके साथ, जो भी आपके साथ में है, उन लोगों को आप केयर करो, उनके साथ आप रहो, बी स्टेबल विद देम, बी विद देम, बी पॉजिटिव। पता है बाहर की सिचुएशन बहुत सीरियस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटा सीरियस मुंह लेके घूमते रहें। आप एक फ्लावर हैं, आप में एक फ्रेगनेंस है, आप जहाँ जाओगे आप वो फ्रेगनेंस फैलाओगे। सो अगर जैसी फ्लावर आप होगे वैसी ही खुशबू आप अपने एटमॉस्फेयर में डालोगे। पता है सीरियस सिचुएशन है, बहुत बुजुर्ग लोग भी हैं जिनको इस बात से टेंशन भी हो रही है। आप खुशी स्प्रेड करो ना, आप हैप्पीनेस स्प्रेड करो, ताकि वो चीज़ें उन तक प्लस हों और कहीं ना कहीं उन्हें भी अच्छा लगे, देखे कि हाँ ये समय गुजर जाएगा। नॉट लाइक दैट कि जब आप सीरियस चेहरा बना के घूम रहे हो एंड यू आर मेकिंग अदर्स ऑल्सो सो सीरियस। ज़रा सा कुछ हुआ नहीं कि दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया। और कोविड हुआ भी तो मतलब किस लेवल पे है, क्या है, कहाँ पर हो, मतलब वो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। सो प्लीज़ आप उस चीज़ को भी समझें। और इन सब में कर्मास जो है वो अपना एक रोल निभा रहे हैं। सो आप जैसा भी कर्म कर रहे हैं अभी के टाइम पर, आप सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे हैं, वो है कर्म। जब आप घर पर हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक कर्मा ज़रूर कर रहे हो। भले ही आपकी डेली एक्टिविटीज़ के कर्मा कर रहे हो, या फिजिकल जो हम घर पे करते हैं वो कर रहे हैं, या फिर हम सोच के कर रहे हैं, सोच के भी कर्मा किए जाते हैं।
सो आप सोच के भी कर्मा कर रहे हैं, सो अपनी सोच को भी थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, उस चीज़ को छोड़ कर चले, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ कर चलें, अच्छे से पॉजिटिवली सिचुएशन को लें। डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपनी खुशी के लिए और आपके आसपास से जुड़े लोगों के लिए आप प्लीज़ पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, ना कि नेगेटिविटी, ना कि सीरियसनेस, ना कि लोनलीनेस, ना कि आपका सीरियस चेहरा। हो सके तो प्लीज़, आप लोग सब स्पिरिचुअल या इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, शायद आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि आपको किस तरीके से आप ही हैं जो इस चीज़ को पॉजिटिवली ले सकते हैं और इस चीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं। सो कर्मा के ऊपर ध्यान रखिए खाली, कि आप जो भी कर्मा कर रहे हैं अच्छा करें, अच्छा सोचें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, मैं भी समझ सकती हूँ इस चीज़ों को, कि मैं दिल से बात कर रही हूँ आप सभी के साथ में, इसीलिए मैं ये क्लियरली बोल रही हूँ कि जो भी मैंने फेस किया है अब तक में वो बहुत टेरिबल था और लाइक बहुत ऊपर नीचे के साथ था। तो मैंने यही सोचा कि मैं आप सभी के साथ ये चीज़ें शेयर करूं। तो जैसे कर्मा है हमारी सोच से भी हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी सोच को भी पॉजिटिव रखें, अच्छा रखें और कोशिश करें कि अपने आसपास एटमॉस्फेयर में अच्छी चीज़ें फैलाएं। इन चीज़ों से बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। जब लोग बोलते हैं कि हमें हमारी लाइफ का पूरा बैलेंस ही निकल गया है, वी आर नॉट एबल टू बैलेंस आवर सेल्फ, तो ये बैलेंस आपको तभी आएगा जब आप अपने कर्मा पे ध्यान देंगे, अपनी सोच पे ध्यान देंगे, आप अच्छा कुछ करते चलेंगे दूसरों के लिए। सोच के चलो हम बाहर नहीं जा सकते हैं कहीं, हम सोच तो सकते हैं अच्छा दूसरे के लिए, हम दूसरे के लिए अच्छा सोच कर हम अच्छे तरीके से रह सकते हैं, राइट? दिल से सबके लिए प्रे कर सकते हैं। हम बाहर कहीं नहीं जा सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अभी आप मेरा एग्जांपल लो तो मेरे घर में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हर चीज़ों को मैनेज करना आसान नहीं है और ये हर कोई समझ भी नहीं सकता। तो जब आप घर में ही अपने लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, आप वो भी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और बाहर जो आप सोच रहे हैं, आप सोच के दूसरों के लिए अच्छा करिए। सोचिए, जो आपके बारे में बुरा बोलता है, बुरा सोचता है, उनके लिए भी आप अच्छी चीज़ें स्प्रेड करिए, मन से उनको हल्का करिए, फॉरगिव करिए, छोड़िए उनको, छोड़ के चलिए। ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारा तरीका है, तुम्हें ऐसे ही सीरियस लेके ज़िंदगी निकालनी है, तुम ऐसे ही रहते हो, राइट? और हम में वो लाइट है, हमें पता है, हम जब योगा करते हैं या जो भी चीज़ें हैं, हम कोशिश करते हैं पॉजिटिविटी फैलाने की, अच्छी चीज़ें, अच्छी सोच रखने की। उसको बढ़ावा दीजिए, आगे बढ़िए और उन्हीं चीज़ों पे फोकस करिए। मैं आप सबको ये चीज़ें इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस करी है। मैं खुद इतनी पॉजिटिव रहने के बाद भी बीच में 2-3 बार डिप्रेस हो गई थी। बुरा लग रहा था कि लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है बाहर। सीरियस सिचुएशन है बोल के सीरियस तो हो रहे हैं, लेकिन मन से आप कर क्या रहे हैं? आप वाइब्स कैसी भेज रहे हैं? आपका ध्यान कहाँ पर है? सो प्लीज़ अपना फोकस, अपना ध्यान, अपनी चीज़ें सही डायरेक्शन में लगाओ, ताकि वो आपको जाके आगे फल भी देगी। जैसे मैंने बोला कि हम बाहर जाके किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं, दिल से कर सकते हैं, फ़ोन करके कर सकते हैं। जितना हो सकता है आप अपने तरफ से ट्राई करिए और बैलेंस रहने की कोशिश करिए। अपने नेचर में पोलाइटनेस रखिए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट ज़रूरी है। और जब भी बात करें तो प्लीज़ स्माइल के साथ बात करें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्माइल आप खुद नेट पे सर्च करिएगा, स्माइल करने से या स्माइली फेस रखने से आपकी हेल्थ में कितना सुधार रहता है या आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ये चीज़ें। सो प्लीज़ कीप स्माइलिंग एंड होप कि ये जो टाइम है, जो टफ टाइम है, ये निकल जाएगा। बी स्ट्रॉन्ग इनफ, ये टाइम चला जाएगा एंड वी ऑल बी सेफ। आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं, जस्ट वेट फॉर द करेक्ट टाइम टू कम, लेट एवरीथिंग गेट नॉर्मलाइज और फिर जस्ट प्रे गॉड कि सब कुछ ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए पहले के जैसा।
हाँ, और घर बैठे बैठे जैसे मैंने कहा कि आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि कितनी सफोकेशन हो रही है, कितना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। वो चीज़ें छोड़कर आप ये सोचिए कि हमें नेचर ने टाइम दिया है खुद के ऊपर कंसंट्रेट करने का, खुद की ग्रोथ के ऊपर कंसंट्रेट करने का, खुद के लिए थोड़ा समय निकालने का। सो आप प्लीज़ उसके ऊपर फोकस करिए। सो मेरा जो मेन पॉइंट्स जो मैंने एक्चुअली में रिसर्च करे थे वो सब हो गए हैं, और विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अभी हमारे गेस्ट को इनवाइट करूँगी, और उन्हें इनवाइट करने के पहले मैं आप सभी को उनके बारे में इंट्रोडक्शन ज़रूर दूँगी। Like nutritionist Hina Yadav, having passed 4 years of experience and successfully handling root cause of the problem, helping patient to come out of the medicine. Mission of her profession is to target come out of the medicine with the help of diet, lifestyle management, exercise to bring awareness in COVID-19 patient undergoing different challenges like depression, demotivated, diet challenges. We have launched so videos. I mean, they have launched some videos, so you can look over on their YouTube channel too, Hina Yadav. Okay, so without wasting time, I would like to call her. I hope she's here. Hello Di. Hello. 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 या प्लीज मैंने रिक्वेस्ट भेजी है मेरे गेस्ट को, तो आप प्लीज अपने आप को साइड कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे गेस्ट वेट कर रहे हैं। हेलो। Hi. Hello. Can you hear me? Hi. Yeah, how are you? Yeah, hi. Hi. Yeah, I'm good, Upasna. How is you going? Yeah, all fine, all fine. That's great. Yeah, I'm outside. I'm outside. Can I know who's there next side? Sir, Outside. आप प्लीज अपने आप को यहाँ से क्या बोलते हैं, आप बंद कर दीजिए वीडियो क्योंकि मेरे गेस्ट वेट कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ लाइव कभी बाद में करूंगी। Okay. Thank you so much, Okay. Satveer. Can you see me? Yes, I can see you, but I can see that you some internet challenges there. So your face, your statue. So just check your Okay. internet. Yeah. So now you are visible? Yes. Yes. You are visible to me. Yes. Okay. Thank you so much, Satveer, for leaving. I'm really sorry. मैं next time आपको live में ले लूंगी, लेकिन अभी मेरा एक चालू है session already. So, Hina ji, how are you? I am good. Okay.
एंड होप सब जन ठीक है आपके यहाँ पर. यस, ऑल आर फाइन. उनका इम्यूनिटी बढ़ाने में ही मेरा पूरा फोकस है. So that, Great. yes, Good. So, like without wasting time, I would like to ask a yeah. question. Like, why diet is important in the fight with the COVID-19? Okay. First, very important, we need to know that cells needs energy. और वो energy कहाँ से आता है? Food से आता है. The food we eat. Once the cells get energy, it gets the power to use oxygen आप जो breathe कर रहे हो. तो आपने देखा होगा अभी diet और oxygen level both are in demand. Okay. So Right. so cells को energy चाहिए ऑक्सीजन लेने के लिए, because once cells get an oxygen तो सभी organs को function करने के लिए smoothness आएगी. Okay, तो इसके लिए हेल्थ प्रोफेशनल से आई रिक्वेस्ट, हेल्थ प्रोफेशनल्स ने जब जो डिजाइन किया है आप लोगों के लिए डाइट, प्लीज फॉलो दैट, बिकॉज वो सब जो भी डाइट आपके लिए डिजाइन किया वो सभी कैलकुलेट किया है कि आप किस तरह से उसको ड्राइव करें और आपके बॉडी में ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आना ही है. और डाइट इज ओनली विल एक्ट एज अ मेडिसिन. डॉक्टर्स ने टैबलेट्स और मल्टीविटामिन दे के रखे हैं सभी पेशेंट्स को, उनको भी लेना है, एट द सेम टाइम डाइट को भी फॉलो करना है, बिकॉज जैसे ही आपका टैबलेट और मल्टीविटामिन स्टॉप होगा, ये डाइट जो आप प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं ये ही आपको आगे लेके चल के आपकी वीकनेस की चैलेंज को इरेडिकेट करेगा. ओके, सो let's help you to drive के what are the 6 points which are required जो आपके डाइट में कवर किया गया है. और मैं जैसे जैसे पॉइंट्स कवर करूंगी तो पेशेंट्स के जो क्वेरीज मेरे पास आए हैं वो भी मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगी, सो दैट अदर व्यूअर्स विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट. फर्स्ट पॉइंट इज हाइड्रेशन, जो आपके डाइट में दिया गया है. हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट. फ्लूइड, और काफी देखा गया कि फ्लूइड नहीं ले रहे हैं पेशेंट्स. रीजन बिहाइंड इज क्योंकि दे हैव लॉस्ट दैट स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल, इवन टेस्ट ऑल्सो, तो उन्हें पानी भी नहीं अच्छा लग रहा है. तो यहाँ पे आप उस हाइड्रेशन को कैसे कवर कर सकते हैं? आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, पुदीने का पानी ले सकते हैं, दैट विल गिव फ्लेवर. हालांकि उसका सेंस ऑफ टेस्ट तो नहीं आएगा आपको, बट यस आपको एटलीस्ट गुड फील फैक्टर होगा. या आप हर्बल कॉन्कॉक्शन ले सकते हैं, तुलसी जिंजर का पानी ले सकते हैं, वार्म, उसमें लेमन डाल के आप ले सकते हैं. आप अलग अलग वे जो कॉन्कॉक्शन है वो आप ले सकते हैं, जो भी आपके घर में यूज हो आइडियाज हैं उसको आप ले सकते हैं. तो आप वाटरमेलन ले सकते हैं जो आपके फ्लूइड का काम करेगा. कोकोनट वाटर है वो भी आपके फ्लूइड, वो तो काफी अच्छा है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करेगा. वीकनेस को, जो बॉडी का वीकनेस है वो आप ले सकते हैं डाइट के थ्रू. नेक्स्ट जो पॉइंट है, करंटली जो आप अंडरगो कर रहे हैं, प्रोटीन एंड एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम पीएम कहते हैं. ये माल न्यूट्रिशन को रिकवर करने के लिए प्रोटीन की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको डाइट में दाल्स, वैरायटी ऑफ दाल्स दिए गए होंगे, वो भी लाइट दाल्स, येलो मूंग दाल, ग्रीन मूंग दाल और भी अदर दाल्स दिए गए होंगे, सो दैट आपके बॉडी का इम्यूनिटी बिल्ड हो, आपको एनर्जी मिले. और प्रोटीन हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शन. ओके, तो प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है. एट द सेम टाइम एनर्जी तो आपके कार्बोहाइड्रेट से आएगी. एंश्योर कि आप राइस और दाल को कंबाइनली ले, विच विल कंप्लीट द प्रोटीन. ओके, तो जो भी एमिनो एसिड्स हैं वो प्रॉपर आपके बॉडी को मिलेगा और आपके सेल्स में एनर्जी जनरेट करेगा. नेक्स्ट जो है प्री एंड प्रोबायोटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गट हेल्थ के लिए. आप कुछ भी खा लें, बट अगर आपका डाइजेस्टिव पावरफुल नहीं है तो जो भी आप इनटेक करोगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और आपको स्टमक एक होगा, एसिडिटी चैलेंज होगा. तो एंश्योर करें कि आपका प्री एंड प्रोबायोटिक डाइट जो आपके इसमें दिया गया है, गार्लिक, देन दही, बटर मिल्क, ये सारी बनाना, ये सारे प्री एंड प्रोबायोटिक का काम करते हैं, जो आपके गट हेल्थ को रेडी करते हैं एब्जॉर्ब करने में और इम्प्रूव करने में. राइट नाउ आपका गट हेल्थ वीक है,
इसके लिए आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया लाइट मील. यू डोंट हैव टू गो विथ हेवी मील प्लीज, क्योंकि आपको पनीर एंड ऑल ये अभी डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो आपको लाइट मील में जाना है. नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें आपको हेल्दी फैट्स की जरूरत है, आपको विटामिन डी की सख्त जरूरत है, क्योंकि उसमें आपको एब्सॉर्प्शन होगा. विटामिन डी आप जब भी 7 to 9 या 7 to 10 के बीच में, द बेस्ट टाइम इज मॉर्निंग टाइम. किसी किसी को इन्फ्लेमेशन या स्किन का चैलेंज आता है, तो बेस्ट टाइम इज 7 to 9. तो आप जब प्राणायाम करते हैं तो आप अपना योगा धूप में बैठ के करें. द बेस्ट वे, इट्स लाइक द स्मार्ट वे, 2 in 1. आप योगा भी कर रहे हैं, आप विटामिन डी भी ले रहे हैं. इससे क्या होगा, और हार्मोनल फंक्शंस इंप्रूव होंगे, बिकॉज विटामिन डी इज अ मस्ट. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलूंगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट. ये दोनों आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, एक लेयर बनाता है जैसे वो फाइट कर सके डिजीज. तो ये जो मैंने 6 पॉइंट्स कवर किए, ये सभी होलिस्टिकली कवर होने चाहिए, देन ओनली आपका रिकवरी फास्टर होगा कोविड के चैलेंज. So now this is what I have talked about the diet. But जो queries आए हैं वो है shortness of breath हो रही है. Yes, आपको shortness of breath इसलिए हो रही है क्योंकि आपके सेल्स में एनर्जी नहीं है. आपको जब आप प्राणायाम भी करेंगे तो आप सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि आप स्लोली जाएं. बट आपके सेल्स को एनर्जी देने के लिए आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. लाइट मील बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, और आप धीरे धीरे खाएं, फास्ट नहीं खाना है. जितना हो सके सूप्स पिए. चबाने का नहीं हो रहा होगा ताकत, तो आप सूप पिए, दाल का सूप पिए, खिचड़ी बनाएं. इस वे से अपने डाइट को लेके जाएं जैसे आपके हेल्थ प्रोफेशनल ने दिया है. नेक्स्ट क्वेरी है ड्राई माउथ. तो वो आप अपने फ्लूइड से कवर कर सकते हैं विथ वेराइटी ऑफ फ्लूइड जो मैंने आपको बताया. नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो प्लीज डाइट को फॉलो करें, क्योंकि आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, आई अंडरस्टैंड. बट ये सूप्स और ये वेराइटीज से आपको थोड़ा टेस्ट आएगा जब आप ब्लैक पेपर और ये सब डालेंगे. बट यस, आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा, so that you should come out of it. Yeah, I am done, Upasna, on this question. Yes, you can move to next. गुड. और यहाँ पे हमारे एक ऑडियंस में से एक ये आया है, व्यूअर ने बोला है कि स्टीम लेना जरूरी है और मैम इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं. तो अभी जैसे आपने बताया कि डाइट में क्या क्या चीजें जरूरी है yes. जो इम्यूनिटी को बढ़ाएंगी. Okay. और स्टीम लेना okay. ये जरूरी है मेरे हिसाब से. तो दिन में 2 बार थोड़ी 5 मिनट्स का तो ले ही लें. Okay, just let me help you out with do and don'ts also. डू में आपको लाइट मील लेना है, आपको विटामिन डी लेना है, क्योंकि मैं ये सब कवर कर चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ. विटामिन डी लेना है, स्टीम लेना है. स्टीम आप प्लेन वाटर का भी ले सकते हैं, अजवाइन का भी ले सकते हैं, लवंग का भी ले सकते हैं, और यूकेलिप्टस का ले सकते हैं. बट यूकेलिप्टस का ज्यादा नहीं लेना है, बिकॉज किसी को प्रॉब्लम होती है इनहेलिंग करने में. तो इट्स बेटर अजवाइन, लवंग आर द ऑन द सेफर साइड. ओवर थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग रखना है डोज में, ठीक है. जितना हो सके आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है. आप इस पीरियड में, रिकवरी पीरियड में, जितना हो सके आप अपने इस पे ध्यान दें, आपके जहाँ आपका इंटरेस्ट एरिया है. लिसन टू म्यूजिक. फैमिली तो ये बहुत अच्छी बात बोली आपने. ये मैं मिस कर दी थी बोलने के लिए कि जैसे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ेगा जब आपको जो चीजें पसंद है वो चीजों पे आप फोकस करेंगे, उस चीजों को आप ज्यादा करेंगे, ना कि आप सीरियस होके और ज्यादा उस बारे में सोचें. जब आप खुश होएंगे, जैसे हमारे योगा में भी बोला जाता है कि अगर आप उसको साइंटिफिकली भी लें, और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि योगा का क्या रोल है. आई एम सॉरी बीच पे कट कर रही हूँ क्योंकि वो कंबाइन हो रहा था. लाइक योगा में कैसे साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो आप कोई भी आप ये ले रहे हैं थॉट, कोई भी आपके आ रहे हैं, जब आप खुश होते हैं या आप दुखी होते हैं तो आप एक हार्मोन या आप एक जूस जो है हमारे अपने बॉडी में रिलीज करते हैं, जो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है और नुकसान भी देता है.
सो अगर आप, Yes. इसीलिए बोला कि थॉट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थॉट का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने आप को ही इतना स्ट्रांग रखेंगे, आप अपने थॉट्स को स्ट्रांग रखेंगे, आप अपने बॉडी में वो हार्मोन्स रिलीज करेंगे, वो स्ट्रेस Yes. हार्मोन्स के बदले आप हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करेंगे, और वो अपने आप ही आपकी इम्यूनिटी को भी पावर देगा, कहीं ना कहीं एक उस चीज Yes. को सपोर्ट देगा कि वी आर देयर, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, आएगा जाएगा सब ठीक हो Yes. जाएगा, डोंट वरी। Yes. सो दैट इज Yes. ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रोल, यू नो। Yes, so my yoga expert has given the answer of positive thinking. Okay, so listen to music, do painting, do whatever you like, do crafting. YouTube में देखो, but yes, no gadgets पे ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि आईज पे इम्पैक्ट पड़ता है, हीट जनरेट होता है। एग्जैक्टली। तो आपको जितना हो सके, और फैमिली तो आपको सपोर्ट कर ही रही है, आप अगर इरिटेट भी हो रहे हैं तो फैमिली वो भी आपकी इरिटेशन को वेलकम कर रही है। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है, जब आप डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो उसको जो है ना 5 मिनट में हवा कर दें, राइट, ठीक है, राइट, और फिर से स्माइल कर दें। वो आपके फैमिली के लिए आपका स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए आपका हेल्थ, आपका रिकवर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे क्लाइंट पेशेंट्स के आ रहे हैं वो है, दे आर वेरी मच वरीड, खास करके मेल्स के, अबाउट देयर बिजनेस एंड अदर थिंग्स। उनको डिप्रेशन में आ जा रहे हैं। तो ये चीजें प्लीज आप अभी प्रेजेंट सोचिए, फ्यूचर बाकी है, फ्यूचर को आप बना सकते हैं, पहले आप प्रेजेंट बनाइए, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस होगा, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। अगर आपके स्ट्रेस से अगर चीजें ठीक हो जाए, तो मैं तो बोलूं ये तो बेस्ट सॉल्यूशन है। काउंसलिंग करते वक्त मैं भी यही सॉल्यूशन दूं कि स्ट्रेस लो और सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। बट स्ट्रेस इज नॉट योर सॉल्यूशन राइट नाउ। आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका डाइट जीरो हो जाएगा। तो प्लीज इंश्योर कि अपना डाइट जीरो मत करें, ये दोनों क्योंकि हाथ में जैसे हाथ मिला के चलेगा कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या अंदर ले रहे हैं, और आप क्या सोच के बाहर निकाल रहे हैं। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बैलेंस रखना जरूरी है। यस, और खाना पचेगा ही नहीं, एब्सॉर्ब ही नहीं करेगा, क्योंकि सेल्स आर स्ट्रेस्ड। सेल्स एब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगा न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि गीता में भी लिखा है, खाना शांत मन से खाइए, लगना चाहिए शरीर को, दुखी मन से खाने से कोई मतलब। बराबर, करेक्ट। ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है, हल्दी वाला दूध। यस, ऑब्वियस आई गेस, हल्दी वाला दूध पी के सोना है बोला तो यही है। ये आपके हल्दी वाला दूध एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है। जो आपके बॉडी में पेन है और बॉडी से लड़ने की जो ताकत है, वो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी दोनों कंबाइनली काम करते हैं। तो एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका टर्मरिक, जिसको हम कर्क्यूमिन भी बोलते हैं। ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बट यस, नोट कीजिए, हल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगी आपके बॉडी में अगर आपने ब्लैक पेपर नहीं डाला। तो जितना आप हल्दी डाल रहे हो उसका पिंच ऑफ पेपर डालिए, देन ओनली दैट टर्म हल्दी एब्जॉर्ब्स इन योर सेल्स। ओके, so that is important. Now, anything more query on that? Other around that? Yeah, I guess the questions are this much only I can see. Okay. And so I will switch to don'ts. So don'ts में please don't focus on your heavy meal, जो आपकी प्रैक्टिस पहले रही है। अब ये सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आपका बॉडी एक्सेप्ट करेगा। आपका बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको जैसे ही आपने हैवी मील खाया, वॉमिटिंग, नोशिया, आपको अनकंफर्टेबिलिटी फील होगी, कि डाइजेस्टिव एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका बॉडी। ओके, नेक्स्ट, आपको कैफीन नहीं लेना है, इट इज कंप्लीटली नो। सो प्लीज अवॉइड कैफीन। देन आपका क्या बोलते हैं, एल्कोहल एंड स्मोकिंग कंप्लीटली नो। अगर आप एडिक्टिव हैं स्मोकिंग के, तो प्लीज वंस इन अ डे इज इनफ। ओके, क्योंकि हम वहां पे रिस्क नहीं ले सकते। एल्कोहल को फिर भी साइडलाइन कर सकते, बट जिनको स्मोकिंग की बिल्कुल भी आदत है उनके लिए चैलेंजेस आते हैं। बट प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर नहीं हो, जितना हो सके आप कंट्रोल करें और अपने बॉडी को बिल्कुल फोकस करें रिकवरी में। मेडिटेशन, प्राणायाम, इनमें ही फोकस करें, अपने आप को हैप्पी करें, ये इम्पोर्टेंट।
Correct. So I'm Very true. completed with your first question. We can move to next. I mean, pre and post COVID-19 care. Anything वो on हमने it? कवर कर ही दिया है. या Okay. प्री एंड कोर, Okay. हाँ वो हमने कवर कर ही दिया है. Then why is vaccination so important? Okay. Vaccination is important. Okay. Why? मुझे बताइए, वैक्सीनेशन हम देते हैं बचपन में भी. बच्चों को वैक्सीनेशन चिकन पॉक्स का मिलता है, टाइफाइड का मिलता है. क्यों मिलता है? क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करता है. इट रिड्यूस योर रिस्क. ऐसा नहीं है आपको नहीं होगा, आपको हो सकता है, बट उसका इम्पैक्ट 100% नहीं होगा, 50% होगा. आपका लेवल हाई नहीं जाएगा. सेम वे वैक्सीनेशन कोविड का आपको लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है और वायरस से लड़ने की ताकत देता है और रिस्क रिड्यूस करता है, which is more important. So that's why vaccination is important. Nice and true. Yes. तो ये questions भी काफी आ रहे हैं. Any questions on yoga, pranayam? आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, और कोई questions हैं? तो Either I. या मैंने जैसे मैंने बोला कि आई मीन स्टार्टिंग में पहले डीप ब्रीदिंग, फिर कपालभाति क्रिया, जैसे कि उसे क्रिया कहा जाता है rather than the प्राणायाम प्रैक्टिस, बिकॉज वो क्लींजिंग करता है. सो कपालभाति एंड देन द लास्ट वन इज प्राणायाम. प्राणायाम भी अगर हर किसी को नहीं आता है तो भ्रामरी बोला तो भी बहुत है. अगर ये 3 सेट, मतलब जैसे डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट किया, you started with deep breathing, then you have done Kapalbhati, and then the Brahmari Pranayam, and you end it with the Om, because Om is very important. As I always say, that Om is a vibration. It's not a word only, it's a vibration that the universe is sending every second. So you have to pronounce that Om, 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 you know, as much as possible to connect with the universe. So इसमें जैसे हम डीप ब्रीदिंग स्टार्ट किए, समझो थोड़ी टाइम के लिए फॉर 4 मिनट्स 5 मिनट्स हमने डीप ब्रीदिंग किया. टेक अ पॉज फॉर 30 सेकेंड्स और 1 सेकेंड. आई मीन इतना नहीं सोचना है, बट हाँ थोड़ी देर रुक जाना है. नहीं तो सब टाइमर भी लगा के बैठे कि भाई अब 15 सेकेंड हो गए, 30 सेकेंड हो गए, तो वैसा नहीं है. बट या यू हैव टू टेक डीप ब्रीदिंग एंड देन यू हैव टू टेक यू नो ब्रेक and then start with the Kapalbhati practice. At least 82 counts is enough. Those who are in yoga or those who know that how they do how it has to be done or have done it before, they can practice for more counts. लेकिन जब नहीं आता है, कुछ नहीं है, तो खाली एक एज वाले भी रहते हैं जो बोलते हैं हमें तो नहीं आता करना, तो आप उसको खाली 82 काउंट्स तक भी किया तो बहुत ही यू नो बेनिफिशियल है. And after that, again take a break of at least 30 seconds or 1 minute, and then you start with the Brahmari Pranayam. Brahmari Pranayam will help you a lot in calming down your own mind. That's the best pranayam I have ever seen. बाकी जो experts हैं, अगर उन्हें उज्जयी करना है या और दूसरे कोई प्राणायाम करना है, they can do, but for everyone in a journal basis. अभी नहीं. उज्जयी प्राणायाम के लिए बहुत फोर्स लगता है. सो राइट नाउ अगर वो सिर्फ ब्रीथिंग ऐसे भी ले लें, ऐसे भी ले लें, इस तरह भी करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, आप अपने सेल्स को धीरे धीरे पावर दे रहे हैं. राइट. प्राणायाम में भी जैसा है, हम लोग कहते हैं कि आपको अपना बैक स्ट्रेट रखना है. एक सपोर्ट चाहिए तो ले लो पीछे. बैक स्ट्रेट इसलिए रखोगे क्योंकि इससे जब आप यू नो डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं या व्हेन यू आर टेकिंग डीप ब्रीथ्स, योर लंग्स आर एबल टू एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट सो दैट मोर ऑक्सीजन कैन गो इनसाइड. You know, you can take in more oxygen, so you have to sit straight and then you have to do breathing,
And Brahmari also, there are many much questions on it, that how to do, etc. So just normal, like your palms are there, you just place it here on your ears. Don't Hmm. press it too much. Just keep your hands and Just start cover it. the humming sound. Yeah, just start with the humming sound. Like just say madhumakhi Right. karti hai, so take deep breath in and exhale and go with a till your exhalation is over. So this practice also keeps beneficial. Right. और बाद में लास्ट Right. में आप ओम बोलिए and it's done. Very good. Right. Very correct. So योगा का जो रोल है वो प्री में भी इम्पोर्टेंट है, पोस्ट में भी इम्पोर्टेंट है, इवन आफ्टर रिकवरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट है. रीजन बिहाइंड इज ये योगा ही है जो आपके बॉडी में आपके एलिमेंट्स, ये प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ये जब कंबाइन होता है तो आपके बॉडी, सोल और माइंड को काम करता है, सेल्स के हॉर्मोन्स को हैप्पी करता है, फंक्शनिंग इजी कर देता है. तो आपको पोस्ट रिकवरी के बाद भी आपको इसको कंटिन्यू करना है, सो दैट इट शुड रिड्यूस योर रिस्क, और आपका इम्यूनिटी पावर जितना आप योगा करेंगे उतना ही बढ़ाएगा. So that is what I have to conclude on yoga. Correct. Yeah. So everyone keep doing yoga and pranayam and eat healthy, stay fit, and please think positive. That's very much important to release the positivity in the atmosphere. So thank you so Exactly. much. Thank you so much, Hina ji, for Thank you. coming live with us and sharing your knowledge. Thank you. And thank you Thank you, all. Upasana. Thank you all the viewers for coming and joining us tonight. So stay Yes. connected, stay tuned. Thank you so much. Namaste.